Natural resources. Nature has been so kind to man. Ever since his appearance on the earth's surface, man has been dependent on nature for his subsistence. In the initial stages of the history of economic development, man identified these natural gifts available around him and learned to use them. Although natural products existed over the earth's surface even during prehistoric time, man had neither the tools nor the technology to use them. Land, sunshine, wind, forest, wildlife all were present much before the appearance of man on the earth. With time, he could learn to cultivate the land. He could grow crops by protecting different plants and run the wind and water mills by using the wind and water energy. Similarly, for centuries, coal and mineral oil were present below the earth's surface, but he had no technology to utilize them. Hence, these natural materials turned into resources only when they could be used. प्राकृतिक संसाधन. प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव की खुशहाली के लिए उपयोग किए जाते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं. एक समय था जब यह समझा जाता था कि प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ, क्षेत्र या वस्तुएं हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, परंतु आज पृथ्वी पर या इसके अंदर उपस्थित प्रत्येक पदार्थ मानवता के लिए महत्व का है और परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों में माना जाता है. मनुष्य का जीवित रहना, उसका स्वस्थ व प्रसन्न रहना प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके पुनः परिसंचरण पर निर्भर करता है. Any material which can be transformed in a way that it becomes more valuable and useful can be turned as a resource. In other words, it is possible to obtain valuable items from any resource. Thus, land, water, minerals, forests, wildlife, as well as human beings are resources. Any material may be termed as a resource provided that an appropriate technology is available to transform them into more valuable goods. Thus, rainforests are a resource. The oceans are an example of natural resource, as ocean waves can be used to generate wave power, a renewable energy. This is a picture of open pit diamond mine in Siberia, which is an example of a non-renewable natural resource. Types of resources. Resources may be classified in several ways. On the basis of origin, natural resources may be divided into two types. They may be biotic or organic and abiotic, inorganic. Biotic resources are obtained from the biosphere. Forest and forest products, crops, birds, animals, fish, and other marine life. They are examples of biotic resources. Coal and mineral oil also belong to this category since they originate from organic matter. Some biotic resources like forest and livestock are renewable, whereas coal and oil are non-renewable. Then, abiotic resources. Resources composed of non-living inorganic matter are called abiotic resources. Land, water, and minerals like iron, copper, lead, and gold are abiotic resources. Some abiotic resources are found as nodules in oceans, as nodules of copper and manganese. Then, considering the stage of development, natural resources may be referred as potential resources, actual resources,
reserve resources, and stock resources. Potential resources are those that may be used in future, for example, petroleum and sedimentary rocks. Then actual resources, those resources that have been surveyed, quantified and qualified and are currently used in development such as wood processing. Then reserve resources, the part of an actual resource that can be developed profitably in the future. And then the last, stock resources, those that have been surveyed but cannot be used due to lack of technology, for example, hydrogen. Then on the basis of recovery rate, natural resources can be categorized as renewable resources and non-renewable resources. Some resources are exhausted soon, whereas others last for a long period. Thus, depending upon the availability of resources, resource may be renewable, that is inexhaustible, or they may be non-renewable, that is exhaustible or cyclic. Resources which can renewed along with their exploitation are always available for use. Hence, they are called renewable resources. For instance, forests are renewable. If trees are felled for wood, original forest covers may be maintained through planting new trees, that is afforestation. However, formation of some resources like iron ore, coal, mineral, oil has taken several thousands of years. Once they are used in unlimited way, they cannot be easily replaced. Therefore, if exploited at a large scale, they will deplete fast. Hence, such resources are called non-renewable resources or exhaustible resources. प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो पहले हम नवीकरणीय संसाधन को लेते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत जैविक संसाधन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे कि कृषि, वन, घास स्थल तथा जीव जंतु आते हैं। जैविक संसाधनों में पुनः स्थापन होने की क्षमता होती है, अर्थात इन संसाधनों की पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण संभव है। इन संसाधनों में प्रजनन गुण के कारण इनकी मात्रा में वृद्धि होती रहती है। इन संसाधनों की समुचित देखरेख, योजनाबद्ध व सही प्रबंध करके इनसे निरंतर उपभोग की सामग्री प्राप्त की जा सकती है। जैविक संसाधनों की एक अन्य विशेषता उनके परस्पर संबंध भी हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई वन जलाया जाता है तो इससे न केवल वहाँ के वृक्ष ही प्रभावित होते हैं, वरन मृदा तथा वन्य जीव भी नष्ट होते हैं। जलीय संबंध भी परिवर्तित हो जाते हैं तथा तापक्रम भी प्रभावित होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में जैविक संसाधन जटिल रूप से आपस में बंधे होते हैं। देन अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन सामान्यतः अजीवित वस्तुओं जैसे कि खनिज, धातुएं, जीवाश्म, ईंधन आदि। इन संसाधनों की पुनर्स्थापना नहीं होती है या पुनर्स्थापना की गति बहुत ही मंद होती है। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, जस्ता, अयस्क या पेट्रोल के स्कंद में वृद्धि नहीं होती है। एक बार यदि अनवीकरणीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर लिया जाए तो समझना चाहिए कि ये खजाना समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में मानव को उसका विकल्प खोजना होगा या इसके बिना ही काम चलाना होगा। नवीकरणीय संसाधनों के विपरीत अनवीकरणीय संसाधनों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता।
जैसे कि किसी क्षेत्र में कोयला उत्खनन किया जा रहा है तो उसका प्रभाव अन्य खनिजों पर नहीं पड़ता है। ऑलिवर ओवन ने प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण में जैविक संसाधनों को इनएग्जॉस्टिबल या असमाप्य संसाधन कहा है, अर्थात ये संसाधन अनंत हैं। ओवन के अनुसार असमाप्य संसाधन दो प्रकार के होते हैं, इम्यूटेबल एंड मिसयूजेबल। अपरिवर्त्य वे संसाधन जिस पर मनुष्य की गतिविधियों से कोई विशेष विपरीत परिवर्तन नहीं होते, उदाहरणार्थ आणविक शक्ति, वायु शक्ति, जल शक्ति तथा ज्वार भाटे की जल शक्ति इत्यादि। दूसरे में आते हैं दुरुपयोगी या मिसयूजेबल। इसमें मनुष्य की गतिविधियों से परिवर्तन की संभावना रहती है तथा इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। उदाहरणार्थ सौर ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है, पर मानव की गतिविधियों से बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा प्रभावित होती है। इसी प्रकार वायुमंडल का रक्षक कवच ओजोन परत में वायु प्रदूषण के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो ये दोनों आते हैं जैविक संसाधनों के दो प्रकार जो कि ओवन के अनुसार थे। देन ओवन ने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को समाप्य संसाधन या एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा है। इन संसाधनों में उन्होंने दो श्रेणियों में विभक्त किया है, मेंटेनेबल रिसोर्सेज एंड नॉन मेंटेनेबल रिसोर्सेज। संधारणीय संसाधन मेंटेनेबल रिसोर्सेज, इस श्रेणी में उन संसाधनों का समावेश किया जाता है जिनकी पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण संभव हो, जैसे कि वन, घास थल, वन्य जीव, कृषि इत्यादि। जबकि नॉन मेंटेनेबल रिसोर्सेज या असंधारणीय संसाधन, इसके अंतर्गत वे संसाधन रखे गए हैं जिनकी पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण पूर्णतः असंभव है, उदाहरणार्थ पेट्रोल, कोयला, विभिन्न प्रकार के खनिज इत्यादि। तो संक्षिप्त रूप से अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करें ओवन के अनुसार, तो नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन को हमने दो में बांटा है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनको अगेन हमने दो में बांटा है, मेंटेनेबल रिसोर्सेज एंड नॉन मेंटेनेबल रिसोर्सेज। जबकि जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं या असमाप्य संसाधन हैं उनको दो में बांटा गया है, इम्यूटेबल रिसोर्सेज अपरिवर्त्य संसाधन एंड मिसयूजेबल रिसोर्सेज दुरुपयोगी संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का उपरोक्त वर्गीकरण इतना सरल नहीं है जितना कि परिलक्षित होता है, क्योंकि ज्यों ज्यों हमारा पर्यावरण का ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे ही जटिलता बढ़ती जा रही है। सीमित संसाधनों का उपयोग तथा दुरुपयोग सोच समझकर करना चाहिए तथा जो संसाधन संधारणीय हो उनका उपयोग योजनाबद्ध होना चाहिए। सीमित संसाधनों का विशेष आवश्यकता में ही उपयोग करना चाहिए। मानव की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों की सुरक्षा व संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है।